So previously we have discussed the C4 cycle. ठीक है, C4 cycle या C4 CO2 fixation, that is a method of the carbon dioxide fixation. Okay, C4 cycle होती है C4 plants में, या कह सकते हैं वो plants जिसमें food C4 cycle के थ्रू फिक्स होता है वो C4 plants कहलाते हैं. ठीक है, जैसे कि मेज, शुगर केन, एट्रिप्लेक्स, etc. These are some plants which are C4 plants. तो C4 प्लांट्स में क्या स्पेशलिटी थी? एक तो क्या था, क्रेन्स एनाटमी का प्रेजेंट होना. क्रेन्स एनाटमी की वजह से दो तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक बंडल शीथ सेल्स में, ठीक है, एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, और दूसरे होते हैं नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट या ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट विच आर प्रेजेंट इन दी मीजोफिल सेल्स. तो दो तरह की सेल्स हैं, ठीक है, उन दोनों तरह की सेल्स का प्रेजेंट होना क्रेन्स एनाटमी कहलाता है. अदरवाइज C3 प्लांट्स में तो केवल मीजोफिल सेल्स ही होते हैं, वही क्लोरोप्लास्ट होता है, वही प्राइमरी एक्सेप्टर होता है. जबकि इसमें दो तरह के एक्सेप्टर है, एक प्राइमरी एक्सेप्टर मीजोफिल सेल्स में फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एक सेकेंडरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 मीजोफिल सेल्स में, दैट इज Ru15BP. C4 प्लांट्स में C3 साइकिल भी होती है, किस तरह से होती है दैट वी हैव डिस्कस्ड. सो टुडे पर्टिकुलरली वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ C4 cycle. Type of C4 cycle. There were two scientists. Okay, there were two scientists named Collett and Ogren. Collett and Ogren in 1975. They modified the C4 cycle. जो कल हमने C4 cycle पढ़ा, that was a type of C4 cycle which is most common. Okay, so Collett and Ogren in 1975 found what? They found that in depending upon the species of the C4 plants. Okay, species to species vary करता है कि जो oxaloacetic acid है वो किस में चेंज हो रहा है. मैंने आपको कल भी बताया था, जनरली हमने पढ़ा कि मैलिक एसिड में चेंज होता है. Okay, but it is not always sure or necessary that it will 100%ly or always changes into the malic acid. It may changes also into the aspartic acid. So depending upon this thing, whether it is changing into the malic acid or the aspartic acid, the C4 cycle is of three types. The C4 cycle is of three types. So those were called the types of the C4 cycle. So one is the NADP-ME type. NADP specific malate enzyme, this type. This we have already discussed. The cycle that we have discussed in the previous lecture, that is the NADP-ME type. NADP specific malate enzyme. वहां पे oxaloacetic acid से first stable product से क्या बन रहा था? Malic acid बन रहा था. ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं शुगर केन एंड मेज. The most common C4 plants are the examples of this type of C4 cycle, the NADP-ME, NADP specific malate enzyme. The another type of C4 cycle. Prior to that, we will summarize the pathway. What was the pathway? The phosphoenol pyruvate was accepting CO2 and forming the oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid was changing into the malic acid. This all work was done in mesophyll cells. These were mesophyll cells. ठीक है, फिर ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता था कहां पे? बंडल शीथ सेल्स में. Into bundle sheath cells, this malic acid changes into what? This changes into the pyruvic acid. Here in the bundle sheath cells, the decarboxylation was occurring. It was a 4-carbon compound. This is a 3-carbon compound. So decarboxylation होता था, यहाँ पे Ru15BP एक्सेप्ट करके C3 साइकिल के थ्रू फूड बना लेता था. ठीक है, यहाँ पूरी C3 साइकिल होती थी. फिर फाइनली पायरुविक एसिड अगेन चेंजेस इनटू द PEP यूजिंग ATP. यहाँ NADH2 बनते थे, NADPH2, यहाँ पे NADPH2 यूज होते थे. सो NADPH2 का कोई नेट गेन नहीं है, ना ही यूज ना ही प्रोडक्शन. ठीक है, टोटल एक्स्ट्रा 12 ATP लगते हैं C3 के अलावा. C3 तो हो ही रही है, उसके अलावा 12 ATP एक्स्ट्रा लग रहे थे. दिस इज NADP-ME टाइप. एग्जांपल इज शुगर केन एंड मेज. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द C4 cycle. So that we have also discussed previous day. Next type, the next type is the aspartate former type 1.
the aspartate former type 1. Okay, and the third type, because there are 3 types of the C4 cycle, the third type is the aspartate former type 2, which was the first one, the NADP malate enzyme, NADP specific malate enzyme C4 cycle. So that we have discussed. Second is the aspartate former type 1. Third one is the aspartate former type 2. So very firstly we will discuss the aspartate former type 1. देखिए एस्पार्टेट फॉर्मर टाइप 1 में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से बनता है क्या, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से बनता है एस्पार्टिक एसिड, फर्स्ट थिंग. Okay, instead of what, instead of malic acid, the oxaloacetic acid is changing into the aspartic acid. Okay, this aspartic acid will transport to the, not the malic acid, now this aspartic acid will transport to the bundle sheath cells. These are the mesophyll cells. Okay, this aspartic acid is being transported to the bundle sheath cell. Okay, this aspartic acid is transaminated to form the oxaloacetic acid again. यहां पे आके इसका ट्रांसएमिनेशन होता है. देखिए ट्रांसएमिनेशन क्या होता है, ट्रांसएमिनेशन में ट्रांसएमिनेज एंजाइम होते हैं. ठीक है, ट्रांसएमिनेज एंजाइम्स आर द टाइप ऑफ ट्रांसफरेज एंजाइम. एंजाइम्स की कैटेगरी होती है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफरेज एक कैटेगरी है. ट्रांसफरेज कैटेगरी के एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर कराते हैं. ठीक है, सपोज हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, अमाइन ग्रुप हो, किसी भी ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर कराने का काम ट्रांसफरेज एंजाइम करते हैं. ओके, क्लासिफिकेशन नंबर के अकॉर्डिंग सेकंड क्लास होती है. एंजाइम्स की 6 क्लास होती हैं टोटल, OTHLIL, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइसेजेस, ओके, आइसोमरेजेस एंड लाइगेजेस. इस तरह से 6 क्लास होती हैं LIL. तो उसमें से ट्रांसफरेज कैटेगरी का एंजाइम है ट्रांसएमिनेज. ये अमाइन ग्रुप का ट्रांसफर कराता है एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे. ठीक है, इसलिए इसको ट्रांसएमिनेज और प्रोसेस को ट्रांसएमिनेशन बोलते हैं. तो क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड. एस्पार्टिक एसिड एक अमीनो एसिड है 4 कार्बन का. ठीक है, अमाइनो एसिड क्या होते हैं, एक कार्बन है, उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, हाइड्रोजन है और अल्काइल चेन होती है. ठीक है, तो इस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग हैं. देखिए अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन और अल्काइल चेन, इसलिए इसको कायरल कार्बन बोलते हैं. तो जनरली सभी अमाइनो एसिड्स कायरल होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन. ग्लाइसिन में ये अल्काइल चेन हाइड्रोजन ही होती है केवल. तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसलिए अब ये कायरल नहीं रहा, अलग अलग नहीं हुए ना अटैच, 2 एक जैसे हो गए. तो अमाइनो एसिड सभी कायरल होते हैं. ठीक है, तो ये है 4 कार्बन का अमाइनो एसिड एस्पार्टिक एसिड. ठीक है, ये किसी ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करे, ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करें. ठीक है, तो क्या होता है कि ये अपना अमाइन ग्रुप इस ऑर्गेनिक एसिड को दे देते हैं, ये अपना अमाइन ग्रुप इस ऑर्गेनिक एसिड को दे देंगे, तो ये ऑर्गेनिक एसिड तो बन जाएगा अमीनो एसिड. ठीक है, और ये अमीनो एसिड एस्पार्टेट ये खुद बन जाता है क्या, ऑर्गेनिक एसिड. ठीक है, इस चीज को एक बार दोबारा समझेंगे ध्यान से. एस्पार्टेट फॉर्मेट टाइप 1 में ट्रांसएमिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ. ट्रांसएमिनेशन क्या होता है कि कोई अमाइनो एसिड, यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड एक अमाइनो एसिड है 4 कार्बन का. ठीक है, वो रिएक्ट करता है अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ. ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट के साथ सपोज रिएक्ट कर रहा है. ये एक ऑर्गेनिक एसिड है ना कि अमाइनो एसिड. अब सपोज ये इसको अपना अमाइन ग्रुप दे दे, ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो अमाइन आने से ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड तो बन गया अमीनो एसिड, ये बन जाता है ग्लूटामेट. ठीक है, ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया अमाइनो एसिड जो कि ऑर्गेनिक एसिड था, और ये अमाइनो एसिड इसने अमाइन ग्रुप दे दिया तो ये बन गया ऑर्गेनिक एसिड. तो 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड क्या, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड. इसको ट्रांसएमिनेशन बोलते हैं. ये चीज समझ में आई, ट्रांसएमिनेशन क्या होता है, जल्दी से बताइए. सो फाइनली फॉर्मर टाइप 1 में हम बात कर रहे थे, एस्पार्टेट फॉर्मर टाइप 1. तो उसमें क्या हुआ पाथवे देखिए, उसमें आपका ऑक्सैलोएसिटिक फॉस्फोइनोल पाइरुवेट that will accept the CO2 will form the oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid will changes into the aspartic acid.
और एस्पार्टेट, नॉट द मैलिक एसिड, यहीं पे डिफरेंस आ गया, ठीक है। नाउ दिस एस्पार्टेट will move to the bundle sheath cells, ये मेसोफिल सेल्स, ये बंडल शीथ सेल्स, यहाँ पे एस्पार्टेट आ गया, ठीक है। एस्पार्टेट पहले ट्रांस एमिनेशन के थ्रू, ट्रांस एमिनेशन यानी एक दूसरे ऑर्गेनिक एसिड के से अल्फा कीटोग्लूटरेट से, उस रिएक्शन को हम दिखाएंगे नहीं, ये चेंज हो जाता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में वापस, ठीक है। यानी बंडल शीथ सेल में देखिए मैलिक एसिड होता था पहले, मैलिक एसिड डायरेक्ट पायरुविक एसिड में डीकार्बोक्सिलेट हो जाता था, यहाँ नहीं हो रहा, पहले ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना, अब ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ये बनाएगा पायरुविक एसिड, ठीक है। तो वही डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर से वही काम, C3 साइकिल, बाकी सब कुछ सेम है, केवल ये सबस्ट्रेट चेंज है, मैलिक एसिड के प्लेस पे एस्पार्टेट है, वही C3 हुआ, फूड बन गया, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद ये पायरुविक एसिड बन गया। सिमिलरली पायरुविक एसिड वापस चले जाता है कहाँ पे, पायरुविक एसिड चले जाता है वापस मेसोफिल सेल में, जहां पे उसका फॉस्फोराइलेशन होता है और वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना लेता है। तो बाकी साइकिल तो सेम है, चेंज जो आया वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट होती है एस्पार्टेट टाइप 2, एस्पार्टेट फॉर्मर टाइप 2, मैलिक एसिड ना बने एस्पार्टेट बने तो उसमें भी दो केसेस हैं जिसके अकॉर्डिंग टाइप 1 और टाइप 2 बोला है, ठीक है। एस्पार्टेट फॉर्मर टाइप 2 में क्या होता है, एस्पार्टेट फॉर्मर टाइप 2 में देखिए क्या होगा कि जो आपका एस्पार्टेट है यहां से आगे, ये सिमिलरली ट्रांसपोर्ट होगा बंडल शीथ सेल्स में, तो सिमिलरली फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, एस्पार्टेट, यहां तक सेम है। ये काम हुआ जी कहां पे, मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। मेसोफिल सेल से सिमिलरली अभी तक टाइप 1 की तरह एस्पार्टेट आ गया बंडल शीथ सेल्स में, यहां से टाइप 2 में चेंज आता है, ठीक है। यहां से टाइप 2 में चेंज आएगा, क्या आएगा कि ये जो एस्पार्टिक आया कहां पे, बंडल शीथ सेल में, इसका ट्रांस एमिनेशन होगा, बट ट्रांस एमिनेशन, ठीक है, बट ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड नहीं, ये मैलिक एसिड में चेंज होगा ट्रांस एमिनेशन के बाद, ठीक है। ये भी 4 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड है, मैलिक एसिड भी, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड भी, डिफरेंस 2 हाइड्रोजन का होता है केवल, ठीक है। जो मैलिक एसिड है आपका उसमें क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे NADH2 यूज हो जाते हैं, ट्रांस एमिनेशन के थ्रू ये मैलिक एसिड में चेंज हो गया, फिर ये मैलिक एसिड चेंज होता है पायरुविक एसिड में। तो यहाँ से तो देखिए हम जानते हैं ये रिएक्शन तो हमें पता ही है, यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा, C3 साइकिल हो जाएगी, फूड बन जाएगा, फिर फाइनली पायरुविक एसिड जाएगा कहाँ, मेसोफिल सेल्स में, और दोबारा से फॉस्फोइनोल पायरुवेट में फॉस्फोराइलेट हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है, टाइप 1 से ही NADP MEC ही सिमिलर है, बस कहाँ चेंज आ जाते हैं वो हमने डिस्कस करे हैं, ठीक है। यही बताया था 2 साइंटिस्ट ने, ठीक है, 2 साइंटिस्ट ने यही बताया था, क्या नाम था उनका, कॉलेट एंड ऑग्रेन, 1975 में 3 टाइप्स बताए, NADP ME जो कि कल पढ़ा, एस्पार्टेट फॉर्मर में क्या होता है, यहाँ पे मैलिक एसिड नहीं बना, यहाँ एस्पार्टेट बना, एस्पार्टेट मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में जाता है, जहां उसका ट्रांस एमिनेशन होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में चेंज होता है, अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक एसिड में चेंज हो गया, ठीक है। दिस इज नॉट अमाइनो एसिड, इसमें अमाइन ग्रुप नहीं है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, आगे वही स्टेप सिमिलर, C3 साइकिल हुई, फूड बना क्योंकि यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस कर दी गई, और पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड वहां जाके मेसोफिल सेल में फिर से फॉस्फोराइलेट हुआ। इसी तरह से एस्पार्टेट फॉर्मर टाइप 2, इसमें एस्पार्टेट ही बनता है, एस्पार्टेट ही बंडल शीथ सेल में जाता है टाइप 1 की तरह, बट एस्पार्टेट क्या है आपका, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में ना चेंज होकर मैलिक एसिड में चेंज हो रहा है, और सिमिलरली वही डीकार्बोक्सिलेशन, C3 साइकिल, पायरुविक एसिड गोज इनटू द मेसोफिल सेल एंड अगेन फॉस्फोराइलेट, ठीक है। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ द C4 साइकिल।